امام جعفر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے حد کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بندہ نیکی کرنے کے باوجود لمحہ لمحہ مالک سے ڈرتا رہے، پتہ نہیں اس نے میرے اس عمل کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا کم کرے، او جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ وہ بے نیاز ہے بھائی، اگر عمل پہ ناز کیا تو اللہ منہ پہ مارے گا۔ کچھ لوگوں کے رویے ہم نے دیکھے، نماز پڑھی تو لوگوں کو بے نمازی کے طعنے دیے، چند ٹگے راہ خدا میں خیرات کیے، لوگوں کو کنجوس کہا۔ تو اگر نمازی کا یہ رویہ کہ لوگوں کو یہ باتیں کرے کہ سو چوہے کھا کے بلی حج نو چلی، تینوں مسجد ارا کے نے وہایا، تو وہ بے نیاز ہے، وہ سجدے منہ پہ مارے گا۔ اگر اللہ کی راہ میں لاکھوں کروڑوں کی سخاوت کی ہوگی، لوگوں کو کنجوس کہا ہوگا، تو وہ لاکھوں کروڑوں کی سخاوت بھی قبول نہیں ہوگی۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں دوست؟ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جو راہ دین سے بھٹکا تھا، لیکن مرنے سے پہلے رجوع لے آیا، اور یہ اللہ کی عادت ہے، جو سچے دل سے اللہ سے معذرت کرتا ہے، تھوڑی سی آواز کم کریں، جو سچے دل سے معذرت کرتا ہے اللہ اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے، وہ گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ سری سکتی فرماتے میں گزر رہا تھا تو میں نے سرے راہ ایک شرابی دیکھا، گندی نالی میں اس کا منہ تھا اور زبان سے اللہ اللہ کر رہا تھا۔ میرے نبی فرماتے شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ شرابی کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو اس کا روح قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ شرابی کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت علی فرماتے شراب کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے، دریا خشک ہو جائے، گھاس اگے اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھائے، آپ فرماتے میں اس پر سواری کرنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ اور آج کا جوان فخر سے نہیں کہتا دوست کی دعوت پہ گیا، اس نے ڈرموں میں شراب ڈالی تھی اور ہم نے مٹکے بھر بھر کے پی۔ میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا، فرماتے گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے۔ اور بھائی فطرت میں بھول جانا ہے تو معذرت کرنی چاہیے، اور اگر کوئی بندہ گناہ پہ اترائے، گناہ پہ دلیر ہو، تو پھر جب گناہ پہ گناہ ہوتا ہے تو یہ دل کا آئینہ دھندلا نہیں سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو خیر وہ شرابی گندی نالی میں پڑا تھا، سری سکتی فرماتے میں قریب سے گزرا، مجھے اس پہ رحم آیا، میں نے اسے وہاں سے اٹھایا اور اس کا منہ دھویا اور کان میں اتنا کہہ کے گزر گیا، وہ بندہ خدا نہ پاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لیتے ہو۔ یہ بجلی تھی دوست جو دل پہ گری۔ آپ فرماتے میں تو گزر گیا، اگلے دن مسجد میں آیا تہجد کے وقت، تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں؟ جو کل شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا، آج وہ مجھ سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہے۔ آپ فرماتے میں حیران ہوں، اللہ یہ تو بہت بڑا شرابی تھا۔ تو ہاتف سے آواز آئی، سری سکتی تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا، ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا۔ اجساوی نے کھلے راوی نے۔ او بھائی جو معذرت کرے گا، یہ اللہ کی عادت ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ بھائی یزید بسطامی تصوف کا بہت بڑا نام، آپ کے شہر بسطام میں ایک عورت گھر بناتی ہے، اداؤں سے لوٹتی ہے۔ کسی نے کہا حضرت آپ کا منصب آپ سے تقاضا چاہتا ہے، اس راستے کو روکے۔ آپ مصلی لے کے چلے گئے، جو جوان آتا دیکھتا واپس پلٹ جاتا، کیونکہ حیا مانے تھا۔ اس وقت اہل علم کی قدر بحال تھی۔ یہ عرض کرتا چلوں، مسجد کا نمازی نہیں تھا، مسجد کی کمیٹی کا کوئی ممبر نہیں تھا کہ بھائی یزید بسطامی کو دیکھ کر کے واپس پلٹ گیا، اگر نظریں ملی تو مسجد میں جاؤں گا تو نظریں ملاؤں گا کیسے؟ بھائی جان یہ وہ لوگ تھے جو کبھی مسجد میں آئے نہیں، مسجد کا رخ نہیں کیا، لیکن اہل علم کی قدریں اس وقت اتنی بحال تھی کہ یہ لوگ بھی حیا کرتے تھے۔ لیکن انتہائی معذرت سے کہوں گا، آج ہم جس کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، باہر جا کے اس کی پگڑی اچھالتے ہیں۔ فقہ کا مسئلہ اگر دل میں اتنی بات آ جائے کہ میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے، نماز ہی نہیں ہوتی۔ آج جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جمعرات کو کاپی پینسل لے کے چھت پہ چڑھ جاتے ہیں جب وہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں، اور باقاعدہ لکھتے ہیں، اور پھر بہانے سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب کتنے پیسے ہوئے؟ 250 300 ہوا۔ بھائی خود اکٹھے کر لو،
जिस शख्स को अपने इमाम पे इतना भी एतमाद नहीं कि वो आपकी मस्जिद के 150 रुपया खा जाएगा तो उसके पीछे नमाज होगी। तो खैर बायजीद बुस्तामी को देख के वापस पलटने वाला वो जवान जो थे वो हया की वजह से पलट गए। उस खातून ने अपनी मुलाजमा को कहा नीचे देखो कोई आशना नहीं आया। नीचे देखा तो बायजीद, उसने कहा नीचे तो मौलवी साहब है। उसने कहा जाओ मौलवी साहब से कहो कि अल्लाह अल्लाह करनी तो मस्जिद में करो, ये हमारा धंधा है, हमारा कारोबार है। अच्छा, बायजीद ने जो उसका बना उसकी हथेली पे रखा। उस खातून ने माजरत नहीं की कि शहर बुस्तान में आपकी अजमत के बड़े तराने सुने हैं, आपके पीछे हजारों लोग खड़े हैं, तो मैं चंद टगों के एवज में आपकी पगड़ी और आपके मनसब का मुझे इतना तो ख्याल जरूर है, खुद भी बचिए और अपने साथ जुड़े हुए लोगों को भी बचाइए। कोई ऐसी बात नहीं की, वो तो पैसे के लिए धंधा करती थी। कोई शराबी आए, कोई जानी आए, कोई सूफी आए, वो तो पैसे के लिए काम करते। उसने पैसे पकड़े, फरमाया जो कहूंगा करोगी? कहा हाँ पैसे के लिए काम करती हूँ। आपने लिबास दिया, फरमाया जाओ बेटा गुस्ल करके ये हया वाला लिबास पहन के आ जाओ। और फिर उसको मुसल्ले पे खड़ा किया, उसकी पेशानी अल्लाह के हुजूर झुकाई और फिर बायजीद रोने लगे। कहते मालिक यहां तक लाना बायजीद का काम था, आगे दिल की दुनिया का बदलना तेरे हाथ में है। सजदे में सर है दोस्त, रहमत की बिरखा बरस रही है, नदामत के काफले उतरे, जी भर के रोई, और जब सजदे से सर उठाती है तो वक़्त की वलिया बन जाती है। सूरज मगरब से तुलू नहीं हुआ, तौबा का दर बंद नहीं हुआ। कोई आ जाएगा तो अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन जो बेमहार होगा, मनमानी करेगा, तो फिर भाईजान जब नुक्ते अंजाम को पहुंचेगा ना तो उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। उस दिन को तो काफिर भी कहेगा ना या लैतानी कुन्तु तुराबा, हाय कि मैं मिट्टी बन जाऊं। लेकिन उस दिन यहया अलैहिस्सलाम के हाथों मेंढे की शक्ल के अंदर मौत को भी मौत आ जाएगी। उस दिन जिंदगी ही जिंदगी होगी, तो उस वक्त के पछतावे से कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, वो बनी इसराइल का गुनाहगार मरने से पहले आ गया, और अल्लाह की आदत है जो आ जाता है अल्लाह माफ कर देता है। उसने गुनाह छोड़े, उसने बुरे दोस्त छोड़े। अब दिल में शौक पैदा हुआ कि मैं चंद दिन किसी अच्छे बंदे के कदमों में गुजारा हूं। उसकी बस्ती के बिल्कुल पड़ोस में एक पहाड़ था, और पहाड़ के दामन में एक अल्लाह वाला रहता था, जिसकी जिंदगी का फिर्द वजीफा उसकी यादें थी। अतराफ में उसकी शोहरत बड़ी अच्छी थी। इसका जी चाहा कि मैं चंद दिन उसके कदमों में गुजारा हूं। चंगियां दे लड़ लगियां मेरी चोली फुल पे, बंदियां दे लड़ लगियां मेरे अगले भी डुल गए। चंगे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान अतारा, सौदा पावे मुल ना लईए हुल्ले आन हजारा। और बुरे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान लोहारा, कपड़े पावे कुंज कुंज रखिए चिनका पहन हजारा। और रूमी कहते सोबत साले तुरा साले कुनद, सोबत ताले तुरा ताले कुनद। अच्छी सोबत अच्छा और बुरी सोबत इंसान को बुरा बना देती है। ये शौक उसे खींच के अल्लाह वाले के कदमों में ले गया। माजी के औराख पलटे, मन की बातें क्या डाली। दिन के उजालों में, रात के सन्नाटों में उलझा भी हूँ भटका भी हूँ, तेरा नाम सुना, अब चंद दिन तेरी रफाकत में गुजारना चाहता हूँ। भाईजान यहाँ गलती हो गई। था वो शब जिंदादार, बड़ा नेकोकार था, लेकिन भूल हो गई। उसने अपना अमल और आने वाले का माजी देखा, उसको धक्का दे दिया। कहता है पलट जा, कहीं तेरी बदअमालियों की नहूसत मेरे ऊपर ना पड़ जाए। वो पलट रहा था, सीने में दिल कांपने लगा, आंखें बरसने लगी, कदम लड़खड़ाने लगे, मन की दुनिया में डूब गया। और जी ही जी में अल्लाह से कहता है मालिक तेरे बंदे ने जुटलाया, तेरे बंदे ने धक्के दिए, लेकिन मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं पलट रहा। वो पलट रहा था, खुदा कहरो जलाल में आ गया, वक़्त के पैगंबर की तरफ वही की। फरमाया जाओ उस नेकोकार के पास, उसको मेरा पैगाम दो कि तेरे इस रवैये की वजह से मैंने तेरी सारी जिंदगी की कमाई गारत कर दी है। पढ़ने उते मान करी ना ते ना आखी में पढ़िया, ओ जब्बार कहार सदावे मत रोड दबे दूध कड़िया। फरमाया मेरे पैगंबर उसे भी ढूंढो जो शिकस्ता दिल लेके जा रहा है, उसको मेरा पैगाम दो कि तेरे हुस्ने एतकाद की वजह से तेरे मालिक ने तुझसे दरगुजर फरमाया है। तकवा है अमल करो और अल्लाह से डरो। हमने असलाफ को पढ़ा, उनकी जिंदगियों का मुताला किया, उनके कद इतने बड़े बड़े, और वो अल्लाह से किस कदर डरने वाले थे। भाईजान चुगली गीबत हसद कीना की यहाँ आग लगी है। हम कोई अमल करके लोगों को उस पे खुद तो अतराते हैं, लोगों को जो ना वो नीचा दिखाते हैं, लेकिन मैंने अर्ज किया कि असलाफ को पढ़ा, उनकी जिंदगियों को पढ़ा,
कद बड़े बड़े, और अल्लाह से किस कदर डरने वाले थे। मैंने एक शख्स को एक बार नहीं 1000 बार बयान किया। मैं जब भी नाम लेता हूं तो लहजा मीठा हो जाता है। मैं मुख्तसर सा उस शख्सियत का तारुफ आपके सामने रखूंगा और फिर उनका तकवा बयान करूंगा। सुनिएगा, वो इस उम्मत का पहला सूफी भी है, सहाबी भी है, वो रास्त रू भी है, वो रास्त गो भी है, वो मामलाते दुनिया को सुलझाने का ढाब और सलीका भी जानता है। मेरे नबी ने उस जवान की तारीफ की, फरमाया मैंने जिसको भी दीन दिया उसने तामुल से, तरद्दुद से काम लिया, लेकिन फरमाया अबू बकर वो जवान है, मैंने दीन दिया इसने झोली में डाल लिया। वो इतना अजीमुल मर्तबा शख्स है यार। हुजूर गज़वा तबूक के मौका पर फंड का ऐलान करते हैं, हर एक ने अपनी अपनी इस्तेताद के मुताबिक दिया, लेकिन जब अबू बकर की बारी आई, टाट का खिरका पहना, कांटों के तकमे लगाए, हुजूर की खिदमत में आए। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह ने जबरील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे महबूब की चौखट पे हाजिर हो जाओ, लेकिन फरमाया जाना इस तरह जिस तरह अबू बकर गए हैं। टाट का खिरका पहनो, कांटों के तकमे लगाओ, जबरील हाजिर खिदमत है। मेरे नबी जबरील को इस लिबास में देख करके फरमाते, जबरील आज किस अदा में आ गए? अर्ज की आज की अदा जो अबू बकर ने अपनाई है वो अल्लाह को बड़ी पसंद आई है। और भाई इतना बड़ा नाम, इकबाल खैराजी अकीदत पेश करता है, वो कहता है जर्राए इश्क नबी अज हक तलब, सोज़े सिद्दीको अली अज हक तलब, रूह राजुज इश्क उ आराम नेस, इशक को रोज़ेस्त पूरा शाम नेस, हर के इश्क मुस्तफ़ा सामाने ऊज़, बहरो बरदर गोशाए दामाने ऊज़। इकबाल कहते जवानों, अल्लाह से अगर कुछ मांगना है तो नबी के इश्क का एक जर्रा मांगो, और अगर सोज मांगना है तो अबू बकर वाला मांगो, मौला अली वाला मांगो। तभी इकबाल कहते मालिक तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज़े सिद्दीक दे। कितना बड़ा नाम है यार, जरा उनका तकवा देखिएगा। आप फरमाते काश कि मैं एक परिंदा होता, एक शजर से उड़ता, दूसरे की टहनी पे बैठ जाता, ताकि मैं क़यामत के हिसाब से बच जाता। कभी कहते काश कि मैं कुछ सूखी हुई लकड़ी होता, लोग उसको जला देते, मैं खाक का ढेर बन जाता। इसको तकवा कहते हैं भाई। 39 लोग ईमान लाए, 40वां जवान ईमान लाता है तो नारों की गूंज में इस्तेकबाल होता है। जिन गलियों से गुजरता है शैतान रास्ता बदल लेता है। मेरे नबी फरमाते मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो ये जवान होता, 23 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है, अशरा मुबशरा में से है, ईद का दिन है और आंखें छम छम बरस रही हैं। किसी ने कहा हजरत आज तो ईद का दिन है और आप रो रहे हो। आप फरमाते ईद उसकी जिसके रोजे कबूल हुए, जिसके कबूल नहीं ना हुए उसके मुंह पे मारे जाएंगे। कभी बच्चों को जमा कर लेते हैं यार और कहते बच्चों मेरे लिए दुआ किया करो, अल्लाह मुझे माफ कर दे। बेटे की गोद में सर है और आप फरमाते बेटा मेरा सर जमीन पे रखो। अर्ज की अब्बा जान खैरियत? आप फरमाते बेटा मैं अपना चेहरा मिट्टी में मलना चाहता हूँ ताकि मेरे खुदा को मेरे हाल पे रहम आ जाए। हुज़ैफा बिन यमान ये हुजूर के राजदान है। हुजूर जो कान में बात कहते हजरत हुज़ैफा के कान में कहते। और मेरे नबी ने मदीना के मुनाफिकीन के नाम बताए थे। साहबा कहते जिस जनाजे में हुज़ैफा होते हम जान जाते कि ये कोई मोमिन है, और जिस जनाजे में हुज़ैफा ना होते तो हम जान जाते ये कोई मुनाफिक है। हजरत उमर का दौर है और आप हुज़ैफा बिन यमान को फरमाते हुज़ैफा मैं तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, हुजूर ने जो तुम्हें मुनाफिकों के नाम बताए हैं उन नामों में कहीं उमर का नाम तो नहीं आता। और भाई देखो कितने बड़े बड़े लोग हैं और अल्लाह से किस कदर डरने वाले। हमारे पल्ले क्या है, हम तो जीने नहीं देते, हमें तो बुखार चढ़ जाता है, किसी को इल्म का, किसी को तकवे का, किसी को अमल का, लेकिन वो इतने बड़े बड़े लोग हो के अल्लाह से किस कदर डरते हैं यार। यार एक शख्स आईने के सामने खड़ा है, दाढ़ी में सफेद बाल लेके तो रोने लगे। जानते हो वो कौन थे? ये वो जवान है जिसको मेरे रसूल ने दुनिया में 11 मरतबा जन्नत की बिशारत दी है। ये वो जवान है जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज किया गया आप रोए क्यों? आप फरमाते दाढ़ी में सफेद बाल थे, फरमाया मौत की निशानी आ गई है। लेकिन उस्मान ने अभी कब्र की तैयारी नहीं की। हम कहां खड़े हैं दोस्त? तकवा किसे कहते हैं? अमल करो और अल्लाह से। सादी शेराजी फरमाते एक शख्स अल्लाह के घर में संगरेजों पे सर रख के रो रहा था और क्या कहता है, अल्लाह मुझे कयामत को अंधा उठाना, अपने बंदों के सामने रुसवा ना करना। ये दर्द में डूबी हुई आवाज किसी गुनाहगार की थी।
किसी ओगन हार की थी। यार मेरे जैसा कोई नालायक गुनाहों का बोझ उठा के 7 समंदर पार गया, जुर्म याद आए तो रोने लगा। गधा अगर आजिज़ी करे तो उसकी आजिज़ी नहीं आदत होती, सादी कहते हैं। मेरे जैसा जाके कहे तो बात समझ में आती है कि या अल्लाह अंधा उठाना, शर्मिंदा ना करना। और भाई जब आगे बढ़कर देखा गया तो वो कौन था? वो वक़्त का शेख अब्दुल कादिर जिलानी था। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा। ये वो जवान है जिसकी रातें कभी सजदे में तो कभी क़याम में गुजरती है। ये वो जवान है जिसने 40 साल इशा के वुज़ू से फजर की नमाज पढ़ी है। और अल्लाह के घर में किस हालत में पाएंगे? तड़पते पाएंगे। यहां रुकिएगा भाई, यहां एक बात करके बात को आगे बढ़ाऊंगा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह के घर में किस हालत में पाएंगे? तड़पते पाएंगे। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक एक बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े फकीह गुजरे। आप तवाफ़े काबा कर रहे हैं, लब्बैक कहा तो वहीं गिर गए। लोगों ने आबे ज़मज़म छिड़का, होश आया तो सवाल किया, हज़रत तबीयत में तूफान कहां से आया कि होश ही उड़ा के ले गया? तो आप फरमाते जब मैंने लब्बैक कहा ना तो मुझे डर लगा कि कहीं ला लब्बैक की आवाज ना आ जाए। तड़पते हुए पाएंगे। एक शख्स मुल्तज़म से लिपटा है और उसने अपने चेहरे पर कपड़ा डाला हुआ है और तड़प के कहते हैं मालिक तेरा मुजरिम, तेरा गुनाहगार बंदा तेरी दहलीज पे हाजिर है। जमीन में जो ना वो रेत, और रेत के इतने जर्रे नहीं जितने मेरे गुनाह हैं। दरख्तों पे इतने पत्ते नहीं जितने मेरे गुनाह हैं। और तड़प के कहते हैं मालिक मुझे माफ कर दे। लोग अपनी दुआएं भूल गए, लोग तवाफ भूल गए और हाथ उठा के कहते या अल्लाह अगर हमारी इबादत कबूल है तो हम उस इबादत का वास्ता देके इस बंदे के लिए दुआ करते हैं, या अल्लाह इसको माफ कर दे जो गश खा के जमीन पे गिरता है। होश आता है तो तड़प जाता है। कहा मालिक हमारी दुआओं को कबूल कर ले इसके हक में। जब दुआ का सिलसिला खत्म हुआ तो किसी ने कहा जवान तू है कौन, कितने गुनाह करके आया? जब चेहरे से कपड़ा हटाता है तो लोगों की चीखें निकल गई। जानते हो वो कौन था? वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह के घर में किस हालत में पाएंगे? तड़पते पाएंगे। यहां मेरे एक सवाल है, ये बड़े माकूल लोग थे, इनकी सोहबत में बैठने वाले लोग वासिल बिल्ला होते थे, जनाजे उठते थे, इनकी दीनी खिदमात बहुत बड़ी हैं, लेकिन अल्लाह के घर में तड़पते पाएंगे। भाईजान हज उम्रा के लिए हम भी जाते हैं, क्या हमारी हालत शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसी होती है? क्या हमारी हालत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जैसी होती है? क्या हमारी हालत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसी होती है? हमें तो ज्यादा डरना चाहिए था ना कि हम तो वाकई कंधों पे गुनाहों का बोझ उठा ले जाते हैं। हमें तो खौफ आना चाहिए था कि कहीं जद्दा एयरपोर्ट से न दुदकार दिए जाए कि मेरी पाक सर जमीन पे इनके गंदे कदम न लगे। बताइएगा दोस्त, हम अल्लाह के घर में गए तो क्या मताफ आंसू से भर गया? हम अल्लाह के घर में गए तो क्या गुलाफे काबा से लिपट के माजी की तलखियां उस पर अल्लाह से माजरत की कि मालिक तेरा मुजरिम, तेरा गुनाहगार बंदा हाजिर है, अल्लाह माजरत का जो है वो दरखास्त करता हूं, अल्लाह माफ कर दे? क्या हमारी हालत ऐसी हुई? इंतहाई माजरत से कहूंगा, हमने वहां लोगों को देखा अल्लाह के घर में दाखिल हुए, जेब से मोबाइल निकाला, तस्वीर बनाई, उसको फेसबुक पे डाल दिया। एक हाथ से तस्वीर बन रही है और एक हाथ दीवारे काबा पे है, और गुजरते लोगों को हमने वहां देखा कि लोगों के तरले कर रहे होते कि मेरी तस्वीर बनाओ। बैतुल्ला की तरफ मुंह है और दुआ वाली हायत बनाई, दुआ मांग नहीं रहे, मसनूई हाथ उठे हैं और तकाजा होता है कि मेरी तस्वीर बना दो। कहां खड़े हो दोस्त जहां अल्लाह की भी 120 रहमतें उतर रही हैं? कहां खड़े हो जहां तबीयतों में नशा पैदा होता है कि इन राहों से मोहम्मद अरबी गुजरे हैं? बास का लोग हमें कहते हैं मौलवी साहब ये तरगीब के लिए। मैं कहता हूं 6 फुट का कद तरगीब क्यों नहीं देता? दीन तस्वीरों से आया है। और यार कुछ नेकियां तो गुमनाम किया करो, अल्लाह के लिए किया करो। जो भी नेकी की पहले था वो नेकी कर दरिया में डाल, फिर अखबार में डाल और आजकल फेसबुक पे डाल। हमें उतनी देर तक चैन ही नहीं आता जितनी देर सारे जहां को हम सुना नहीं लेते। असलाफ अल्लाह के घर में तड़पते पाएंगे और हमने वहां काम क्या किए? हम सिर्फ मोबाइल के ध्यान लगे रहे। ये तो बैतुल्ला में है ना, हमने मदीना तो रसूल में है। यहां हमारी हालत क्या होती है? आखिर पे हम दुरूद सलाम पढ़ेंगे, हाथ यहां बांधे होंगे, आंखें बंद भी होंगी, नम भी होंगी, क्योंकि हम खुद को खींच के दरे हबीब तक ले जाते हैं। और भाई यहां हमारी हालत है ये है कि यहां आंखें बंद भी हैं और नम भी हैं। और अगर किसी को हुजूर की चौखट नसीब हो जाए, किस्मत यावरी करे यार, हम इन हवाओं फिजाओं में उड़ते हुए हुजूर की दहलीज तक पहुंचे,
वहां तो रवा रवा सलाम कहे ना, यहां हालत क्या है, यहां हमारी आंखों में आंसू होते हैं। मेरे एक टीचर है सलीम दिलावरी, हफीज ताइब के शागिर्द हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं। वो तखय्युलात में खुद को खींच के दरे हबीब तक ले चलते हैं। मंजर देखिए कि कितना आला है। आप फरमाते आसा दे बूए खुल दे, दर्दां दे वर्के थुल दे, दुखां दे झकड़ झुल दे, अखां चों हंझू डुल दे, लू लू दा सीना पाड़ दे, आका जी दिल नू साड़ दे, गोते ते गोता खा रहे हैं, वहमां च डुबदा जा रहे हैं, दसिया नचन ना तारे हैं, राइयां तो पुछ पुछ हारे हैं, जिथे खुदा दा नूर है वो शहर किन्नी दूर है। सोचा पकांदा जावना, मन विच बिठांदा जावना, नक्शे पकांदा जावना, कर ले करीना इंजदा, होना मदीना इंजदा, वेले ने डाडे या नबी, पल्ले नहीं साडे या नबी, बैठे दुराडे या नबी, उम्मती तुहाडे या नबी, हिजरां दे फनियर शूक दे, मुड़ मुड़ के एहो फूक दे, आवन मुरादा पक के, किस्मत ले जावन धक के, सोना मदीना तक के, बैजामा जिस्म थक के, ठंडी हवा जे वग जाए ते अख जरा को लग जाए, कमली जरा सरका के, मुखड़े तू पर्दा चा के, खापां च फेरा पा के, आकाए आखण आके, रामां दी सख्ती झल के, आयो दूरों चल के, उल्फत दे डाबू तर के, होके सलीम भर के, दिल नू आनंद आ गया, सानू पसंद आ गया। करम फरमाओ साडे ते हबीबी या रसूल अल्लाह, मदीने आउन नहीं देंदी गरीबी या रसूल अल्लाह। और यहां जज्बात ये हैं हमारे भाई, और अगर हुजूर का दर नसीब हो जाए, वहां तो रवा रवा सलाम कहे ना। हमें मदीना में एक दोस्त मिले, वो कहते हैं यहाँ बड़े पुराने बुजुर्ग हैं, और हमने उनसे पूछा कि हमें कैसे पता चले कि हमारा सलाम बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कबूल हो गया है। यकीन जानिए बड़ी माकूल सी बात, दिल को छू लेने वाली बात उन्होंने की। उन्होंने कहा बेटा अगर मवाजा शरीफ के सामने गुजरते हुए आंखें भीग जाए ना, तो समझ लो कि बारगाह रिसालत मुआब में सलाम कबूल हो गया। सलाम के आदाब होते हैं यार, लेकिन इंतहाई माजरत से कहूंगा, हमने मदीना में लोगों को देखा, बाबू सलाम से दाखिल हुए, एक हाथ में 5 रियाल का जूता होता है। पहली बात तो यह है उस जूते की औकात क्या है, जिसको आप सर पे उठा के यहाँ जो ना लेके जा रहे हो, और दूसरे हाथ में मोबाइल होता है और लाइव कॉल चल रही होती है, और ऊंची ऊंची आवाज में हम लोग कह रहे होते हैं हुजूर को सलाम कर लो, हुजूर को सलाम कर लो। और भाई आज भी हुक्म है कि ले सांस भी आहिस्ता के दरबारे नबी है। वहां सांसों का शोर बेअदबी कहलाता है, और वहां हमने ऊंची आवाज में ये कहा कि सलाम कर लो, सलाम कर लो, एक हाथ में जूता और दूसरे हाथ में मोबाइल। क्या ये सलाम के आदाब है? इमाम मालिक ने 40 साल रोजे रसूल पे दरसे हदीस दिए, 40 साल, और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने किताब का फर्क पलटा और उसकी आवाज भी पैदा हुई हो। आप मदीने की गली बाजार से गुजरते, दीवार के साथ लग के गुजरते थे, कंधे जख्मी हो जाते। किसी ने कहा हजरत हुजूर के शहर मदीना के गली बाजार इतने तंग सोड़े नहीं कि आप दीवार के साथ लग के गुजरते हो। आप फरमाते हो दीवानो, ये गलियां बाजार वो हैं जहां से मेरे महबूब गुजरे हैं। एहतियात इसलिए कि कहीं बेखबरी में मेरा पाँव वहां ना आ जाए जहां मेरे रसूल के कदम लगे हैं, और बेअदबों में न लिख दिया जाऊं। या सही नजदीक अकबर ने वहां दीवार खड़ी की जहां हुजूर की पेशानी लगती थी, मुसल्ला खींच के पीछे ले आए, जहां मेरे नबी के कदम लगते हैं वहां अबू बकर की पेशानी लगती है। आला हजरत ने लिखा कि मदीने में जाओ तो आंखें भी पूरी ना खोलो। हमने क्या किया वहां? हम जूते उठा के जनाब और ऊंची ऊंची आवाजें देते रहे, और वहां लोग झाड़ियों में झांक झांक करके देख रहे होते हैं। वहां तो गुजरो यार, लबों पे दरूदो सलाम के गजरे हो और आंखों में बरसते आंसू हो, और हमने वहां भी झल्लों वाले काम किए। असलाफ का तरीका क्या था कि अदब के सांचे में डल के सलाम कहते हैं। हमें मक्का में तड़पते दिखाई दिए गए, हम वहां भी तस्वीरें बनाते और यहां भी तस्वीरें बनाते रहे। तो तकवा किसे कहते हैं दोस्त? अमल करो और अल्लाह से डरो। आगे इरशाद फरमाया हर जान देखे कि उसने आने वाले कल के लिए आगे क्या भेजा है। यह खिताब मुझे भी है और आपको भी है। मेरी जिंदगी के तकरीबन 37 साल बीत गए हैं। आप में किसी के 25 गुजर गए होंगे, किसी के 50, किसी के 20। ज़मीर की अदालत आप भी लगा लो, मैं भी लगा लेता हूँ। मनानुम के मनदानुम मैं बड़ी अच्छी तरह अपने आप को जानता हूँ, यहाँ क्या हूँ और मेरी निजी जिंदगी कैसी है अच्छी तरह जानता हूँ। आप अपने आप को अच्छी तरह जानते हो, कहाँ खड़े हो भाई जिंदगी में, माजी में क्या कुछ किया और हालिया जिंदगी कैसी है। हमसे तकाजा है दोस्त कि आने वाले कल के लिए, मुस्तकबिल के लिए आगे क्या भेजा है। बात अमल की जा रही है। ये दुनिया ना साहिब, इसका मुस्तकबिल अगर रोशन नहीं ना तो इसके लिए मेहनत जरूर है। मेहनत कितनी है? 8 घंटे है? नहीं भाई, 18 घंटे है।
یہ 18 گھنٹے محنت کس لیے ہے؟ پردیس کے دھکے کس لیے ہیں؟ آپ کی آرزو ہے کہ میں اس وادی کا امیر ترین شخص بنوں، اس خواب کی تکمیل کے لیے جان جوکھوں میں ڈالی، 18 سے 20 سال محنت کی، یہ آرزو رکھتے ہوئے کہ میں برادری میں اور رشتہ داروں میں نمایاں بنوں، ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر، ہمسائے کے گھر میں کھڑی گاڑی سے بڑی گاڑی، اس خواب کی تکمیل کے لیے کتنی محنت کی. اور یہ اللہ کی عادت ہے، جو جس میدان میں دوڑتا ہے نا اللہ اس کو اس کا صلہ ضرور دیتا ہے. اگر وہ دولت اکٹھی کرنے کے لیے دوڑتا ہے تو اللہ ضرور دیتا ہے. محنت کا صلہ دولت کی صورت میں ملا. 5 کروڑ کا گھر بنا، 50 لاکھ کی گاڑی آئی، اور کروڑوں پیچھے اولاد کے بھی لیے چھوڑا. بھائی جان ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ گھر نہ بناؤ، یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ بڑی بڑی گاڑیاں نہ لو، یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ بھائی لاکھوں کروڑوں نہ، اللہ آپ کو اس سے بھی زیادہ دے، لیکن بھائی دنیا کے لیے صرف دنیا کے لیے اتنا دوڑے، قبر کے لیے کتنی محنت کی. تاور محشر جو قیامت کا منصف ہے، جس کے سامنے میں نے آپ نے حاضر ہونا ہے، وہاں کے لیے کیا کیا؟ انتہائی معذرت سے کہوں گا وہاں ہم نے لوگوں کو بے نیاز دیکھا ہے. ہمارے ویسے دیہاتوں میں یہ بولیاں بولی جاتی، پتہ نہیں یہاں پہاڑوں میں بھی لوگوں کے رویے شاید ہمارے لوگوں سے ملتے جلتے ہی ہوں گے. کسی کو آخرت کے معاملے میں ہم نے لوگوں کو دیکھا بے نیاز. وہ کہتا ہے یہ جہاں میٹھا اگلا کس نے ڈٹھا. یقیناً یہاں بھی لوگ بولتے ہوں گے کیونکہ آواز مجھے سنائی دی گئی. یہاں بھی لوگ بے نیاز ہیں کہ یہ جہاں میٹھا اگلا کس نے ڈٹھا. ہم کہتے ہیں آئے گی تو ویکھی جائے گی. اچھا جسے کوئی بات نہ ہے وہ یہ بات ضرور کرے گا، وہ کہتا مولوی بخشے گئے تھے بھی بخشے جاواں گے، پیر بخشے گئے تھے بھی بخشے جاواں. اور بھائی ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنا حساب دینا ہے. بھائی آپ نے اپنا حساب دینا ہے. اگر ہم اپنے منصب سے خیانت کریں گے تو ہم بھی اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ہم آپ کی قبر میں اور آپ ہماری قبر میں آ جاؤ گے. آپ نے اپنا حساب، ہم نے اپنا حساب دینا ہے. اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہو، چراغ کا کام کیا ہے بھائی؟ راستہ دکھانا ہے نا، روشنی پھیلانا ہے. اندھا استفادہ نہیں کرتا، نہ کرے آپ کر لو. سادی کہتے ہیں نصیحت دیوار پہ لکھی ہو، بات اچھی ہے وہ قبول نہیں کرتی، نہ کرے آپ کر لو. ہم نے کہا مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے. اور فرض کرو اگر مولوی نہیں بخشے جاتے تو پھر جہنم قبول ہے؟ یہ کوئی تماشا تو نہیں بھائی. یا آپ کس کتاب کا حوالہ ہمیں دے رہے ہو؟ کہاں سے پڑھ کے سنا رہے ہو؟ اور ہم نے بڑے بڑے دلیر لوگ بھی دیکھے، وہ کہتا مولوی صاحب ایک ڈبکی لگے گی اور جان چھوٹ جائے گی. یہ اچھالی جھیل میں چھلانگ لگانی ہے؟ راوی کے کنارے سے چھلانگ لگا کے دوسری طرف نکلنا ہے؟ چناب میں چھلانگ لگانی ہے؟ یہ آگ کا دریا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے اور ایک دھماکے کی آواز آئی. فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ آواز کیسی تھی؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. آپ ہماری رہنمائی فرمائے. فرمایا 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا، آج اس کی گہرائی میں پہنچا ہے. 70 سال جاتے لگیں گے تو بھائی 70 سال آتے بھی تو لگیں گے نا. تو ایک ڈبکی کتنے سال کی ہوئی؟ 140 سال کی. ان پہاڑوں میں کوئی ہے جس کی عمر 140 سال ہو؟ اور یہ کیسا دلیر آدمی ہے جو کہہ رہا ہے میں 140 سال ڈبکی لگا لوں گا. دنیا کی آگ بے وفا ہے. ہاں بے وفائی کی کہانیاں اسی طرح ہے بھائی. آگ کی دریا میں چھلانگ لگائے تو 2 لمحوں کے لیے وہ خوش کر کے پھینک دیتی ہے، جان چھوڑ دیتی ہے. لیکن جہنم کی آگ ایسے نہیں کرے گی. وہ تارکول کی طرح ہوگی، لوک کی طرح ہوگی جو جسموں کے ساتھ ہی چسپاں ہو جائے گی. اور یہ تو جلا کے خاک کا ڈھیر بناتی ہے، لیکن وہ لوک کی طرح ہوگی جو جسموں کے ساتھ ہی چسپاں ہو جائے گی. اور میرے بھائی جہنمی کو اگر جہنم کی آگ سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے نا تو چین کی نیند سو جائے. اس دنیا کی آگ کی کہانی کیا ہے؟ ایک جوان جو اللہ کا ولی بھی تھا، اس کو عورت نے دعوت گناہ دی. حسن سج کے سامنے کھڑا ہے، بدکاری کی دعوت دے رہے، پاس چراغ جل رہا تھا، آگے ہاتھ بڑھایا تو 2 لمحوں کے بعد کھینچ لیا. مخاطب ہوئے، کہا او خاتون اس آگ کو نہیں سہ سکتا، جہنم کی آگ کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ خود بھی بچ مجھے بھی بچا، چٹی چادر پھمنا والی داغ نہ لامی جنیا، حشر دیاڑے پھر نہ کی حال ربا کی بنیا. ایک بڑی اپنے بچوں کی شکایت ایک اللہ والے کے پاس لے آئی کہ یہ نالائق صبح نماز کے لیے نہیں اٹھتے، آپ کوئی تعویذ کو دم کر دو. فرمایا بہن اچانک اس کمرے میں جس کمرے میں تیرے بچے ہوتے آگ لگ جائے کیا کرو گی؟ کہا ممتا تڑپے گی، کھینچ کے باہر لے آؤں گی. تو فرمایا جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے.
वो तो जान भी नहीं छूटेगी। भाईजान हमने कहा डुबकी लगेगी जान छूट जाएगी, हमने कहा आएगी तो देखी जाएगी, हमने कहा मौलवी बख्शेंगे तो हम भी बख्शे जाएंगे, हमने कहा ये जहां मिठा अगला किसने डिठा। ये बातें करके हम गुजर जाए तो क्या क़यामत की सख्तियों का सामना नहीं करना पड़ेगा? कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर ले तो क्या उसके खूनी पंजों से बच सकता है? वो तो सहूलत पैदा कर रहे हैं। अगर हम आखिरत की परवाह करना छोड़ देंगे तो क्या आखिरत की सख्तियों का सामना नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा भाई। अगर यहां मजे हैं तो क्या हिसाब नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। वो बादशाह के लिए बुढ़िया फूलों की सेज सजाती थी, 1.25 मन फूल लगते, बादशाह आता खाबे खरगोश के मजे लेता। एक दफा उसने फूलों की सेज सजाई, दिल में ये ख्याल आया कि बादशाह के आने में अभी कुछ ताखीर है, मैं 2 लम्हों के लिए इस सेज पर लेट के देखूं मजा कितना है। बांध की चारपाइयों पे सोने वालों को इतना मुलायम बिस्तर मिला, आंख लग गई। और आंख उस वक्त खुली जब बादशाह अपने मुकर्ररा वक्त पे आया। अपनी सेज पे एक मामूली मुलाजमा देखी, गैरत से लाल पीला हो गया। जल्लाद को कहता उल्टा लटका और इसको कोड़े मारो, उसकी जान निकल जाए, लोगों के लिए इबरत का नशा बने। कोड़ा लगता है तो चीखे मार के रोती है। अचानक तेवर बदल लिया, रोने की बजाय हंसना शुरू कर दिया। बादशाह ने जल्लाद को कहा जरा रुको, मैंने इससे कोई 1-2 बात पूछनी है। उसने कहा बुढ़िया रोती क्यों हो? वो कहती ये भी कोई पूछने वाली बात है? कोड़ा लगता है जान निकलती है। कहा बता फिर हंसती क्यों है? उसने कहा मैं हंस इसलिए रही हूं कि मैं तो सिर्फ 2 लम्हों के लिए सेज पे आई हूं और इस पर लेटने की इतनी मार खा रही हूं, जिसको उम्र हो गई इस पर लेटते उसका क्या बनेगा? और भाई अगर मजे हैं तो हिसाब देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इब्राहिम बिन अदहम की छत पे बेहलोल टहर रहे थे, कदमों की आहट सुनी, कहा कौन? फकीर बोल उठा। पूछा क्या कर रहे हो? कहा ऊंट तलाश कर रहा हूं। बादशाह की हंसी निकल आई, पगले कभी छतों से भी ऊंट मिले हैं? इकबाल कहते बात में सादा व आजादा, मानी में दकीक। ये फकीर लोग बात मुख्तसर सी करते हैं लेकिन इनकी बातें हिकमत से भरी होती हैं। कहा हुजूरे वाला अगर छतों से ऊँटने ना मिलते तो नरम और गदास बिस्तरों पर रब भी नहीं मिलता। दिल के आईने पे चोट लगी, सल्तनत को लात मारी, जंगलों में भाग निकले, इतना नाम लिया, इतना रब का नाम लिया कि हस्ती ही मिटा दी। दजला की मौजे गवाह है ये वही इब्राहिम बिन अदम था। वहां बैठ करके अपनी गुदड़ी सी रहे थे, पास से रियाया का बंदा गुजरा, उसने देख करके पहचान लिया, बड़ी हसरत से कहा हुजूरे वाला वो शाही अच्छी या ये गदाई अच्छी? कोई बहस कोई दलाइल नहीं भाई। हाथ में सुई थी, पानी की मौजों के सुपुर्द की। आवाज दी मछली सुई लेकर के आ जा। मछली मुंह में सुई लेके आ गई। आप फरमाते बता वो शाही अच्छी या ये गदाई अच्छी? और भाई जो उसका हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। मजे हैं तो हिसाब देना पड़ेगा साहेब। जिंदगी थोड़ी सी है, हमसे तकाजा है कि तुमने आने वाले कल के लिए आगे क्या भेजा है। अमल की राहों पे दौड़ोगे, खुद को थका देने के जज्बे रखोगे तो भाईजान नाम भी जिंदा रहेंगे, पैगाम भी जिंदा रहेंगे। और अगर अमल की राहों से हमने जो है वो अपना रास्ता बदल लिया तो हमारे पास सवाए पछतावे के और कुछ भी नहीं होगा। मैं कहता हूं भाई कभी इस दुनिया होशरुबा पे नजर दौड़ाओ जिन्होंने अमल वाली तकवा और इबादत वाली जिंदगी गुजारी। उन लोगों के नाम, उन लोगों के तस्करे, उन लोगों के पैगाम आज भी बाकी हैं। मैं हर साल जिला भक्कर तहसील मनकेरा रेगिस्तानी इलाके वहां जाता हूं और मैं पहली दफा वहां जब गया, वहां मुर्शद आबाद के नाम से एक आस्थाना है। पहली दफा वहां जाने का इत्तेफाक हुआ तो कहानी ये थी कि मीलों मील न बस्ती, न आबादी, न शजरे सायदार, न शजरे फलदार, पानी मिला कड़वा कुसैला। हैरत की दुनिया में खो गया अल्लाह, ना सुदागर ना किसी रियासत का मालिक। इसकी कब्र पे इतने लोग कहां से आ गए? मेरे दिमाग की स्क्रीन पर कुरान के वो अल्फाज उभर आए, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा। जिनकी रातें सजदे और क़याम में गुजरती हैं अल्लाह मिटने नहीं देता। मैंने रेत के जर्रों को वजद में देखा, उलमा को, सूफिया को, औलिया को मोहब्बत की बोलियां बोलते देखा। मैंने एक दीवाने को देखा जो कह रहा था रे मैं गुसारो सवेरे सवेरे खराबात के गिर्द फेरे बफेरे। कभी इस तरफ से गुजर कर तो देखो, बड़ी रौनकें हैं फकीरों के डेरे। और भाई अमल वाले लोग नहीं मरते, जिंदा रहते हैं। अफगानिस्तान से एक जवान उठा, लाहौर आया, कच्ची कुल्ली में बैठ के तौहीद के जाम पिलाने लगा, भटकी इंसानियत को हदायत की राहें देने लगा। मैं कहता हूँ भाई दिन का उजाला या रात का सन्नाटा, कड़कती धूप या बरसते बादल, वहां जाकर के देखो, वहां उशाक का मेला नजर आएगा। देता अल्लाह ही है, ये हमारा अकीदा है, लेकिन अल्लाह वालों के मज़ारात पर अल्लाह की रहमतों को उतरने की आदत है। जो मांगो अल्लाह अता भी करता है। तभी तो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह
जिसकी एक निगाह ने 90 लाख मुशरिकों को ईमान दिया। शौक की चिंगारियां खींच के अली हजवेरी के कदमों में डाल देती है। 40 दिन का चिल्ला काटा दामन भरा तो बेसाख्ता बोल उठा, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। और इकबाल सैल्यूट पेश करता है, वो कहता है सैयद हजवेर मखदूम उमम मरकदे ऊ पीरे संजर राहरम। ओ भाई अमल वाला है, आज भी जिंदा है, आज भी बाकी है। उसे इस दुनिया से गुजरे हुए तकरीबन 1000 साल का जमाना बीतने वाला है, लेकिन नाम आज भी बाकी है। ये अमल वाले हैं और अमल वालों के तस्करे बाकी रहते हैं। मैं कहता हूं भाई, अगर इबरत की आंख हो ना तो तमाशा देखो उन लोगों का जिनके नाम का कभी तोती बोलता था, लेकिन आज उनके नाम देखो खाक तारीख के औराक में गर्द वलूद नहीं। रावी का दूसरा किनारा यार, एक बहुत बड़ा नाम अशारे अबरू से हिंदुस्तान की तकदीर बदलती थी, गर्दनें कट जाती थी। जाओ उनके मकबरों पर, मैं भी गया हूं और महज इबरत के लिए गया हूं। ताश की टोलियां कुत्तों को पेशाब करते, जूतों समेत कब्रों पे चढ़ते देखा। कभी नाम था, कभी हवाला था, लेकिन आज कहां है नाम भाई। समन आबाद के अंदर उन्हीं की बेटी जिसका नाम ज़ेबुन्निसा है, उसकी कब्र के कतबे पर आज भी हसरत व बरा शेर लिखा है। वो कहती बर मजारे मां गरीबा, नए चरागे नए गुले, नए परे परवाना सोजद नए सदाए बुलबुले। वो कहती हमारे गरीबों की कब्रों पे कौन आएगा, ना कोई चिराग जलाएगा, ना कोई पत्तियां डालने आएगा, ना बुलबुल यहाँ आकर के गीत गाएगी। ओ भाई नाम मिट गए, पैगाम मिट गए। इस दुनिया में जो दोस्तों बड़े बड़े नाम आए हैं, लेकिन खाक में मिले। कारून आया, नाम मिट गया। हामान आया, नाम मिट गया। शद्दाद आया, नाम मिट गया। चंगेज आया, नाम मिट गया। हल्लाकुहा आया, नाम मिट गया। आले सासान जिन्होंने 3150 साल ईरान पे हुकूमत की, कहाँ गए भाई। बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े कचकुला, बड़े बड़े शहनशाह और खाक में मिले। वो क्या किसी ने खूब कहा था कि कज्जा कजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नक्कारा, क्या बदिया बैंसा बैल शुगर, क्या घी चावल मूंग मटर। अरे क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब ला चलेगा बंजारा। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मिटे नामियों के नशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। यही तुझको दुन है रहूं सबसे आला, वो जीनत निराली वो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, अरे तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल कर देगी फिर तेरा सफाया। मेरे किबला फरमाते ये दुनिया कूड़ कबाड़ा है, सब ठोंक बजा कर देख लिया। एक सच्चा है दर साईं का, इस दर पर आकर देख लिया। यहाँ दर्दी नहीं सब गर्जी है, उल्फत के रिश्ते फर्जी हैं। सच कहता हूँ कुछ झूठ नहीं, आवाज लगा कर देख लिया। जवानों 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात होगी। कबल इससे कि वो वक्त मेरे और आप पे आए और हमारे पास को हुज्जत बाकी न रहे। आइए दोस्त, हम उन राहों के राही बने जिन राहों पर अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा बिछी है। वो राहें मेरा और आपका इंतज़ार कर रही है। आए थोड़े खुद को थका दे, अमल के जज्बे लेकर के निकले और उन राहों से दूर निकलिएगा भाई जिसमें नाराज़गी के अलावा और कुछ भी नहीं। हमसे तकाजा है मुस्तकबिल के लिए आगे क्या भेजा है, बात अमल की है। अल्लाह मुझे आपको अमल के जज्बों से माला माल फरमाए। आखिर भी इतना ज़रूर कहूँगा दोस्तों, अपनी मसरूफियात में से कुछ वक्त निकाल करके उलमा की सोहबत में बैठा करें, इनसे दीन सीखा करें। इनकी सोहबत में बैठने से आपको अमल की राहें मिलेंगी और अकायद की पुख्तगी नसीब होगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे आपको अमल के जज्बों से माला माल फरमाए। आज की इस बज़म को जिन दोस्तों ने सजाया, हम सबको जमा किया, मुझे उनका नाम तो नहीं आता, बहरहाल जो भी दोस्त हैं अल्लाह उनकी मेहनत जुस्तजू कावश अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। उन्हें अल्लाह दुनिया आखिरत की इज़्ज़तों से माला माल फरमाए।